Good morning, students. I hope you all are fine. Today, you all know that I have explained the topic active and passive voice, and today I am going to do you all some exercises, and that is exercise number 1. In this way, we shall do all the exercises given in the book regarding active and passive voice. So, I have told you how to change from active to passive voice and from passive to active voice. Let us see the exercise. I will not go through the full exercise, but do some parts of the exercise like 2 or 3 questions. Then move on to the next exercise. In this way, we shall finish this topic as soon as possible. So let us see the first question of the exercise 1. A famous musician sang this song. A famous musician sang his song. A famous musician sang a song. So, this is your subject and this is your verb and this is your object. So, let us change this sentence. A song will come first because it will become the receiver of the action. A song, and that is the second form when we say it is past indefinite. A song was sung by a famous musician. Okay, I hope you all understood. Let us see the question number 8. Monu invited Prakash. Monu invited Prakash to the party. Monu invited Prakash to the party. So, how do we change this sentence? I write here. This is your verb, it is also in second form. This is your subject and Prakash is your object, and this is additional information. So, object will come first, Prakash. It is the second form, so use the second form of be. Prakash was invited. Prakash was invited by Monu to the party. Okay, students, I hope you all understood. So let us move on to the next exercise, that is exercise, and that is exercise 2. Let us see some examples of exercise 2. सब मैंने करा दिया है, बस मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं।
अभी आज और कल में खत्म हो जाएगा। Exercise 2, question number exercise 2 and question number. Ravi passed her a pen. They presented to all the students a check and a certificate. The students gave Mrs. Bharvi a farewell gift. The boy will give you a painting. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉय विल गिव यू अ पेंटिंग। द बॉय विल गिव यू अ पेंटिंग। द बॉय विल गिव यू अ पेंटिंग। अब यहां पे देखें, विल गिव, विल इज व्हाट, मॉडल वर्ब, यू इज योर ऑब्जेक्ट एंड अ पेंटिंग इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट बिकॉज गिव इज अ डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाइट्रांजिटिव वर्ब, Ditransitive verb means having two objects. Having two objects. So that is your subject. First of all, we shall write you. You पहले आ जाएगा। You को आपने लिखा। मॉडल वर्ब में कुछ भी नहीं करना है, will लिखना है और इसके साथ बेस फॉर्म लगा देना है। पैसिव वॉइस में बता चुका हूँ ना किससे बनता है, B + B3। तो यू विल, बी क्यों आया, बी इसलिए आया क्योंकि ये क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यू विल बी, थर्ड फॉर्म लगा दो इसका, गिव का क्या हो जाएगा, यू विल बी गिवन, क्या गिवन, अ पेंटिंग। यू विल बी गिवन, यू विल बी गिवन अ पेंटिंग बाय द बॉय। यू विल बी गिवन अ पेंटिंग बाय द बॉय। इस तरीके से क्या नाम है, इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो भी इसकी जो एक्सरसाइज दी है ये डाइट ट्रांजिटिव से रिलेटेड है। डाइट ट्रांजिटिव से रिलेटेड मींस क्या होगा, इसके दो पैसिव बन सकते हैं। इसके दो पैसिव पॉसिबल हैं। एक तो आपने यू से बना लिया और एक आप बना सकते हैं अ पेंटिंग से। अ पेंटिंग से नहीं बन जाएगा, ये देख लेते हैं कैसे। यहां लिख रहा हूं, मैंने कहा अ पेंटिंग, a painting will be given to you. A painting will be given to you by the boy। इस तरीके से हम कर लेंगे। अ पेंटिंग विल बी गिवन टू यू बाय द बॉय। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 3 देखते हैं। सब मैंने पढ़ा दिया है, इसको मैंने पूरे डिटेल्स में पढ़ाया है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बार बार वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 की जगह पर हम लोग एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3 देखते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं कि माय पेरेंट्स लुक आफ्टर मी। एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है, माय
पेरेंट्स look after me. My parents look after me. यहां से लिखते हैं क्या? सेंटेंस को यहां से लिख देते हैं ना, विजुअल होगा। My parents look after me. My parents look after me. यहाँ now she stands look after means सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि look after, after जो है वो इस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। after इस वर्ब के साथ है और ये मिलकर एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये जब लुक आफ्टर दोनों मिलेंगे तभी एक न्यू मीनिंग क्रिएट होगी। आप ये मत समझिएगा कि लुक मीन्स कोई मीनिंग क्रिएट होगी। यहां पर लुक मीन्स उससे क्या होता है? लुक मीन्स टू अपीयर, टू सीम, टू अपीयर ऑब्लिक सीम, दिखाई देना, प्रतीत होना। और देखना कब इसका मतलब निकलेगा? जब हम लिखेंगे लुक एट, तब इसका मतलब देखना निकलेगा। मीन टू से टू सी, टू सी तभी निकलेगा जब इसके साथ एट आएगा, वरना लुक मीन्स याद रखिएगा टू अपीयर ऑब्लिक सीम होता है, प्रतीत होना या दिखाई देना। ओके, तो यहां पर लुक एट जब होगा तो इसका मतलब दिखाई देना है, देखना होगा। लुक एट, इसने कहा लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी। यहां पर देखो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना। यहाँ क्या? माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी, मेरे पेरेंट्स मेरी देखभाल करते हैं। तो ये पूरा एक साथ है, आफ्टर लुक के साथ है। इसको कहीं भी जहां जहां लुक जाएगा उसके साथ साथ आफ्टर भी जाएगा। हाँ, ये मत समझिए कि आफ्टर अलग से दिया हुआ है, इसके साथ है। और ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। आई रिपीट, फ्रेजल वर्ब। आप टेंस पहचान लें, फर्स्ट फॉर्म दिया है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पेरेंट्स यहाँ पर दिए हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। मी को आप पहले लाएं, आई हो जाएगा। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, आई एम। थर्ड फॉर्म क्या होगा? लुक्ड, और साथ ही में से क्या लिखा जाएगा? आफ्टर। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई पेरेंट्स। I am looked after by my parents. I hope you all understood. Thank you so much for watching this video. Once again, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, कमेंट में, ठीक है, मैं उसे, और कोई क्वेश्चन अगर फंस रहा नहीं आ रहा है तो उसे भी आप मुझे सेंड करेंगे, सेंड मी एंड आई विल एक्सप्लेन ऑन दी बोर्ड। थैंक यू सो मच।